हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस. सो फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय अ सीक्वेंस. हम सीक्वेंस डिफाइन करेंगे और फिर हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की बात करेंगे. ठीक. सो द डेफिनेशन फॉर द सीक्वेंस इज दिस. It says that a sequence is a function. A sequence is a function is a, you can say, a real valued function because we are in real analysis. So sequence is a real valued function whose domain is set of natural numbers. यानी कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो एक फंक्शन है बेसिकली, और उस फंक्शन का जो उसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक एफ है जो कि नेचुरल नंबर लेता है और उनको रियल नंबर्स में ले जाता है. ठीक. एंड sometimes you know sometimes f of 0 is also defined so like this way, f of 0. So sometimes you can maybe say that natural number union 0. So but fine, you can say that the well, we can define it in this way. Okay, so like my sequence is a function which takes inputs from natural numbers and throws them into real numbers. So what are going to be the examples? So examples of sequences can be given as, so one can define f of n to be equal to 1 over n. Now you insert the values of n. So if you insert f1, so you will get 1 over 1, which is 1, and if you put 2, so you get 1 over 2, and if you insert 3, so you get 1 over 3, so on and so forth. So like when you keep on inserting the values, you will get real numbers as outputs. So these outputs, which are 1, 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4, blah blah blah, these are called the terms of sequence. So इनको आप कहते हैं terms of sequence. अब मैंने इसको नाम दिया था fn, f नाम दिया था, लेकिन जनरली लिटरेचर के अंदर इस ये जो हमारा फंक्शन है f, नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स तक, इनको हम लिटरेचर के अंदर an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स x sub n से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगर इस तरह से सीक्वेंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत मर्तबा इस तरह से भी लिखा जाता है an, और यहाँ पर आप कहते हैं n from 1 to infinity. So this means it is a sequence. So yeah, I mean this when you can represent, you can give any name. Maybe if you like, you can give f sub n. So sometimes you define sequences of functions, and in those cases you give them the names like f sub n. So yeah, so in this manner, अगर मैं वो previous वाली sequence को define करूँ तो मेरी a sub n 1 over n हो जाएगी. अब अगर इसमें values मैं put करता जाऊंगा तो मुझे 1, 1 over 2, 1 over 3, ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये इसके टर्म्स है. ठीक. आप और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं. मिसाल के तौर पर आप a sub n एक और सीक्वेंस लिखें जिसमें आप लेते हैं n plus 1 over n. सो दिस इज अ सीक्वेंस. और अगर आप चाहें तो कोई और आप सीक्वेंस बनाएं x sub n to be equal to 1 over n minus 1, or you can give an example y sub n to be equal to sine of 1 over n. So like you can define maybe other sequences, but if we talk about what are going to be the terms of all of these sequences, so we can talk about them. Like अगर a1 के हम terms निकालना चाहें तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 over 1. अगर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 over 2. 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 over 3. तो ये इस तरह से ये इस सीक्वेंस के ये टर्म्स हो जाएंगे. इसी तरीके से यहाँ पर जब आप ऑब्वियसली यहाँ आप 1 नहीं पुट कर सकते, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम
2, or maybe I can avoid this. Let's take this example as x sub n to be 1 over n plus 1. तो अगर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 over 2, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 over 3. ये तकरीबन वही सीक्वेंस है जो हमने पहले लिखी थी. तो अगर यहाँ पर हम n दे दें तो ये हो जाएगा 1 over 2, एंड देन ये हो जाएगा 2 over 3, ये हो जाएगा 3 over 4, ये हो जाएगा 4 over 5, so on so forth. ये इसके टर्म्स हो गए. इस तरीके से इस सीक्वेंस के भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं. साइन ऑफ 1, साइन ऑफ 1 over 2, साइन ऑफ 1 over 3, so on so forth, where n is in radians. So like yeah, you can have so many sequences like. देखिए ये आसान है. अगर आपके पास ये फार्मूला गिवन है, यानी कि इस तरह से सीक्वेंस डिफाइंड है, तो ये टर्म्स बनाना आसान है. जस्ट वैल्यूज पुट करते जाएं, टर्म्स मिलते जाएंगे. समटाइम्स ये होता है कि टर्म्स गिवन होते हैं और आपको वहां से फार्मूला जनरेट करने होता है. वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जिसके एग्जांपल्स आप देख चुके होंगे प्रीवियसली भी. अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 12 14, so on so forth. Oh yeah, so अब इसका फार्मूला बनाना आसान है. इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, an equal to 2 times n. तो अब ये वैल्यूज पुट करते जाएं, ये आपको सीक्वेंस मिल जाएगी. तो ये टर्म्स गिवन थे, ये आपने उसका फार्मूला बना दिया. इस तरीके से अगर आपके पास एक और सीक्वेंस है 4 16 और 64, so on so forth. so ये इसको भी आप लिख सकते हैं. an जो है 4 पावर n है. तो 1 पुट करेंगे तो 4 पावर 1, 2 पुट करेंगे तो 4 पावर 2, 16, 3 पुट करेंगे तो 4 पावर 3 यानी कि 64. सो इस तरह से अगर टर्म्स हो तो आप वहां से इसको फार्मूला को भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं. एक और वे भी होता है सीक्वेंसेस को डिफाइन करने का, वो होता है रिकरेंस रिलेशन के जरिए. यानी रिकरेंस रिलेशन के जरिए, रिकरेंस रिलेशन. और हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशंस होते हैं ना, वो उनको जब सॉल्व करते हैं हम रिकरेंस रिलेशंस को, जिनको आप डिफरेंस इक्वेशंस भी कहते हैं. तो जब आप डिफरेंस इक्वेशन या रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां से जो सोल्यूशन आता है वो सीक्वेंस आती है. जैसे आपके पास डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका सोल्यूशन फंक्शन आता है. इसी तरीके से डिफरेंस इक्वेशन का सोल्यूशन सीक्वेंस आता है. मिसाल के तौर पर एक हमारे पास सीक्वेंस डिफाइंड है इन दी रिकरेंस रिलेशन फॉर्म. वो कहती है कि x sub n plus 1 is given by 1/2 times x sub n, maybe you can write, and where x sub 1 is 2. सो अब अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये पहला टर्म तो ऑलरेडी है. अब अगर 2 पुट करेंगे तो ये x sub 2 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा x sub 2 upon 2. सो लाइक अब यहां पर 1 पुट करें तो जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये x sub 1 over 1 यानी ये 1 आ जाएगा. आप पुट कर सकते हैं. कैसे पुट करेंगे, सो आई कैन शो यू हाउ. सो लाइक x sub n plus 1 is equal to 1/2 times x sub n. अब इसमें अगर n की जगह 1 पुट कर दें तो ये 1 over 2 x sub 1 हो जाएगा. 1 over 2, अब यहाँ 1 पुट कर, इस x sub 1 की वैल्यू 2 है तो ये 2 रख देंगे तो ये 1 आ जाएगा. सो ये x2 जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा. फिर आप इस तरीके से यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो अगर आप 2 पुट कर देंगे तो ये 2 plus 1 equal to 1 over 2, ये x sub 2 हो जाएगा. तो ये 1 over 2 टाइम्स ये 1 और ये आ जाएगा 1 over 2. सो ये 1 over 2 आ जाएगा. इस तरीके से आप इससे जनरेट कर सकते हैं और फिर इस सीक्वेंस का जनरल टर्म फाइंड करें, कोशिश करें. अगर मिल जाए तो जो जनरल टर्म बन जाएगा, ये जो सीक्वेंस बन जाएगी, ये इस डिफरेंस इक्वेशन का या रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन भी कहलाएगा. तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं. राइट, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस. कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस. सीक्वेंस कन्वर्ज होने की डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. देखिए हमारे पास जब भी कोई सीक्वेंस होगी तो होगा क्या, लेट मी शो यू व्हाट हैपेंस ग्राफिकली. बेसिकली
ए एन अगर सीक्वेंस है तो जो ए एन मेरी सीक्वेंस है वो एक फंक्शन भी है जिसकी डोमेन सेटअप नेचुरल नंबर है। जब आप 1 पुट करेंगे तो यहां पर A1 कोई वैल्यू आएगी, सपोज करें ये आ गई। फिर जब आप 2 पुट करेंगे तो A2 कोई और वैल्यू आ जाएगी, सपोज करें वो यहां पर आ गई। लेट से A3 पुट करते हैं तो वो वैल्यू लेट से यहां पर आ जाती है। फिर A4 यानी 3 पर, फिर 4 पर, ये वैल्यूज ऐसे आती जाएंगी। ठीक, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये जो वैल्यूज हैं ये y में किसी वैल्यू के करीब करीब जा रही हैं, यानी ये जो फंक्शन डिस्क्रीट हमने ये जो पॉइंट्स ये जो बनाए हैं, क्या ये पॉइंट्स जाके किसी वैल्यू को अप्रोच करते हैं लॉन्ग रन, यानी जैसे जैसे हम वैल्यूज को बढ़ाते जाएं तो क्या ये किसी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं इस तरह से, या ऊपर से इस तरह से आ रही हो समटाइम्स मे बी, तो क्या वो इस तरह से कन्वर्ज करती है, और मे बी इट कैन हैव सम अदर बिहेवियर एज वेल। सो हम ये देखना चाह रहे हैं अब ये कन्वर्जेंस कब मुझे शोर होगी कि यहां पर एक वैल्यू है, सपोज करें ये वैल्यू है a, कब ये कन्वर्ज करेगी? ये तब कन्वर्ज करेगी कि जब अब जितना भी इसके ऊपर छोटा सा इंटरवल बनाए यहां पर ये एप्सिलॉन नेबरहुड का, यानी ये वैल्यू a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन का यहाँ एक नेबरहुड बन जाएगा जिसमें a माइनस एप्सिलॉन से लेकर a प्लस एप्सिलॉन तक ये y एक्सिस पर एक इंटरवल बन जाएगा। अगर आप कोई भी इंटरवल बनाए और फिर यहां पर जाकर आगे जाकर कोई एक ऐसा n आ जाए कि जैसे ही आप उस n से आगे बढ़े तो ये सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं ये वाले ये इस इंटरवल के अंदर हो जाए, यानी आप जितना छोटा बनाए फिर भी ये टर्म्स अगर उसके अंदर चले जाएं तो आप कहते हैं कि ये सीक्वेंसेस a को कन्वर्ज करती है। तो पहले मैं रफ कहता हूं कि an विल कन्वर्ज टू a, सो इसका मतलब है कन्वर्ज, ठीक है ना, ये an सीक्वेंस है, ये a है, फिलहाल मैं रफ लिख रहा हूं। ये कन्वर्ज करेगी a को कब? if and only if no matter how hard you try, my an will fall inside this interval, यानी आपका ये जो टर्म्स है ये हमेशा इसके अंदर आ जाएंगे whenever आपका ये जो n है ये किसी फिक्स n से एक नेचुरल नंबर से बड़ा होगा फॉर सम n, सम n इन द नेचुरल नंबर्स, राइट। मतलब कोई ना कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर मैं आगे चलकर फाइंड कर लूंगा, उसके बाद वाले टर्म्स इस इंटरवल में चले जाएंगे। अब इंटरवल आप कितना भी छोटा बनाए, यानी इस a के ऊपर बिल्कुल क्लोज होके बनाए फिर भी आपके टर्म्स इसमें चले जाएं तो कहते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। ये फॉर ऑल नेबरहुड्स होना चाहिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन होना चाहिए। तो अगर इसको और लिखने की कोशिश करें अच्छे तो an इसके अंदर है, इसका मतलब है कि an इज बिटवीन a माइनस एप्सिलॉन एंड a प्लस एप्सिलॉन, या यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन an माइनस a लेस देन प्लस एप्सिलॉन। अब इसका मतलब ये है कि मेरा an माइनस a जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, और ये इस साइड पे सेम लिखते जाएं कि whenever n is greater than equal to n। तो अब ये यहां से मैं एक मोटिवेशन लेकर एक डेफिनेशन बनाऊंगा, और वो डेफिनेशन कन्वर्जेंस की ये होगी कि a sequence an is said to be convergent to a if for every epsilon positive I can find a natural number n from natural numbers such that जैसे ही मेरे n जो है वो इस n से बड़े होंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, इट विल इंप्लाई दैट an माइनस a का जो डिफरेंस है ये एप्सिलॉन से छोटा होता जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन, राइट। अब इस डेफिनेशन को हम आगे चलकर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक।